अच्छा ma'am. Okay. Am I audible? Yes, ma'am. I can't hear you. Hello. Ma'am, तो so can शायद you मैं hear me ऑडिबल now? नहीं हूँ और ये खुद क्यों Can नहीं you बोल hear पा me? रहा है. Ma'am, can you hear me? Hello. Ma'am, can you hear me? Yeah, now. Am I audible to you? Yes, ma'am, you are. Okay, yeah. Great. So hi, how are you, Devashish? I'm good, ma'am. How are you? Okay, so how's your class yesterday? Enjoyed? Man. Yes, ma'am. They were great. Okay. So, yesterday you had the mathematics class was the first one, and then you had the chemistry class, correct? Chemistry. Yeah. Yes, So ma'am. today you'll be having first class. I'll be taking yours first class. That is for biology, and then there will be Gurfran sir. He'll be taking your second class for physics. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Okay. So we'll start with the first topic, which you had studied in the last year academic year also. Which was that? Cell, I guess. Yeah, exactly. That's correct. So the today's topic we will start is with cell. तो हम सेल से स्टार्ट करेंगे. तो पहले मैं ये समझती हूँ क्योंकि ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर. बहुत अच्छा है कि फर्स्ट टॉपिक वही आया जो ऑलरेडी लास्ट ईयर पढ़ा हुआ. तो इट विल बी वेरी यू कैन से ना यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक. बहुत कुछ ऑलरेडी पता होगा. तो पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. ओके. सो लास्ट ईयर सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ा होगा. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल? Ma'am, it is a structural and functional unit of living beings. Okay, and yeah, one more thing, na, before we are starting, you must have like you need to keep your notebook handy with you. Okay, और It is there, ma'am. कोशिश करना कि सब सब्जेक्ट्स का अलग अलग नोट्स कॉपी हो बिकॉज यू हैव एक्चुअली हैव अ लेंथी सिलेबस. तो अगर आप साइंस का पूरा एक कंबाइंड कॉपी रखोगे तो इट विल बी लाइक कॉजिंग सम प्रॉब्लम इन लाइक सेकेंड टर्म पर जाते जाते. तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म कुछ इस तरह से भी कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. ओके. Okay, सो या ma'am. यू आर करेक्ट. अगर हम सेल की बात करते हैं तो विल स्टार्ट विद द पॉइंट कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके. एज एक्सप्लेन, फंडामेंटल यूनिट का मतलब दैट इज बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज Function. Sorry, fundamental. फंक्शनल यूनिट. परफेक्टली करेक्ट. Right. ओके. सो आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन फॉर यू. ये तो वो जो आपने पढ़ा है. एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लाइफ, देवाशीष? Ma'am, life. Ma'am, it is Yes, something that we are in. we are in. We are on the planet Earth. We are a living organism. We have life in us. Okay. So how you'll be defining Yes, life? ma'am. Yes, we have It's the something. only. Okay, okay. You said that the thing which we have. Okay. So as a human being, हमारे पास होता है बस. नहीं, other living creatures also do have life in them. Even plants. Right, Correct. ma'am. So Exactly. how you will be defining life? जो सबके ऊपर definition बिल्कुल correct जाए. Life. So basically, yeah, ma'am, we can't describe life, ma'am. Life is life. Why You can't? Why know? can't? Why can't? Okay, your name is Devashish. Do that name have any Yes, meaning? ma'am, it would. It would Devashish. have. It would Yeah. have. Okay. Yes, it have. I tell you, your name meaning है जो मुझे लगता है कि आपके नेम का मीनिंग है वो आप कह सकते हैं ना वो आशीर्वाद जो देवताओं ने दिया है उसे देवाशीष कहते हैं. करेक्ट है. Maybe, यू कैन ma'am. I आस्क योर really don't मदर know आल्सो. myself. I'll ask her. Yeah, for sure. Okay. So she got you as a gift from God. So that's why she Uh-huh. kept your name as Devashish. So the gift from God is known as the Devashish. Okay. So point to be Yes. noted here is हमें भी ऐसा ही गिफ्ट मिला है. That is life. तो जब हम लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, okay, I'll give you one example. You will get to the definition. Okay. So थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं. See, there are many things जो हमने बुक्स में पढ़ी हुई होती है. बट देयर आर सम थिंग्स जो हम प्रैक्टिकली एवरीडे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पर सीखते हैं. सो यू गो टू स्कूल एंड यू आर रेगुलर स्टूडेंट. एम आई करेक्ट? रेगुलर स्कूल जाते Yes, हो आप. ma'am. ओके. सो यू सिट ऑन द फर्स्ट बेंच और ऑन द लास्ट बेंच और ऑन द मिड पार्ट. Mid You're a part, first ma'am, I bench guess. mid. Okay. So one day what happens, you are commonly naturally sitting on your mid bench and your teachers calls your name, Devashish, come in the front. Okay. I'll go, ma'am. पहली सीट पर आकर बैठो, मैम ने ऐसा बोला.
तो what you will do? I'll go take my books and all, and I'll go sit there. Go sit there. But do any question rises in your brain? Why ma'am had done that? मैम Does अगले that- पीरियड में वापस वहीं जाके बैठना, फिर तो कोई नहीं, क्वेश्चन आता नहीं है. जब मैम ने ऐसा आपसे कुछ बोला तो ये सवाल तो आएगा ना, यार मैं तो बात भी नहीं कर रहा था. अगर आप नहीं करोगे तो कोई स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं, मैम क्यों मेरा प्लेस क्यों चेंज कर रहे हो, मैं तो किसी से बात भी नहीं कर रहा था, मैंने क्या किया. दे यूज टू आस्क दोस क्वेश्चंस. देखा होगा, ओके मैम. होता है ना. हाँ होता ही है. अब एक बार में मैम ने बोला कि आप खुद आकर बैठ जाओ फर्स्ट बेंच पर. एक बार आपके पेन को बोला, ऐसे करेंगे ना, ये Ram सारे sitting कोई first bench. और आ रहे हैं। Pen will also ask the question. Brand तो बनानी है, हाँ। As a human being, you will ask the question, ma'am, why you sitting me sit in the first bench? Comes to the pen. Do the pen will also ask question? तो बढ़िया में ना पेन के दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा क्या, मुझे क्यों फर्स्ट बेंच पे बिठाया. नहीं मैम. ये डिफरेंस है. सो वी आर द लिविंग क्रिएचर्स एंड दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जो लिविंग Yes, ma'am. क्रिएचर्स होते हैं उनके पास लाइफ होती है, एंड व्हेन इट कम्स टू द डेफिनेशन, दैट इज द गाय वाला आ तो गया, अरे गए चले भी गए. अभी के लिए तो हमें यही पता है ना कि लाइफ एग्जिस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ. करेक्ट और नॉट? Yes, ma'am. So the power to survive on the planet Earth, that is known as life. So everything have its definition. ऐसा नहीं होता कि किसी भी चीज की डेफिनेशन नहीं होती है. लाइफ है मैम, हम कैसे डिफाइन करें? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है वो लाइफ होता है. बट पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट, अभी बताती हूँ. लाइफ क्या है? द पावर टू सस्टेन ऑन प्लैनेट अर्थ. अभी तक हमें लाइफ अर्थ पे पता है, तो अर्थ पर जीने की क्षमता, खुद को सस्टेन करने की क्षमता, वो क्या कहला रही है? वो लाइफ कहला रही है. ओके, नाउ जिनके पास लाइफ है उन्हें क्या कहेंगे देवाशीष? दे विल बी नोन एज Living beings, लिविंग बीइंग्स और organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स. करेक्ट है. नाउ डू यू राइड अ बाइसिकल? आई राइड अ बाइसिकल. ओके, Sometimes, ma'am. करेक्ट. सो व्हेन वी ब्रिंग द न्यू बाइसिकल, बिल्कुल जो ब्रांड न्यू होती है, बहुत बढ़िया स्मूथ चल रही होती है, बट बाय द टाइम हमें उसको ऑयलिंग करना होता है ना. चेन कई बार साउंड प्रोड्यूस करना चालू कर देती है. सो एवरी मशीन नीड्स टू बी मेंटेन्ड. इज दैट करेक्ट और नॉट? हर Yes, ma'am. मशीन को मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है. तो सेम वही हमारे ऊपर भी है. दैट मीन्स अगर हमारे पास लाइफ है, हमें लाइफ मिली है, मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है. और लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को क्या करना पड़ेगा? दे नीड टू मेंटेन दिस लाइफ. करेक्ट है. अगर हम हमारी मशीनरी को मेंटेन नहीं करेंगे, if there is an organ failure, if my body is not working properly, then what will happen, Devashish? It will leads to death. Is that correct or not? Okay, so point to be noted, all the one who have the life, they are known as living organism, and to sustain on planet Earth, they need to maintain that. And for the maintenance, they need to perform. What they need to perform? Functions. They need to perform the functions. Like my organ needs to work properly. Okay, my liver have a specific function, my digestive tract have a specific function, my skin have a specific function. So each and every organ of my body needs to work properly. Okay, so that I can sustain on planet Earth. And to maintain all these functions needs to be carried out. So where these functions are carried out? In our body. And our body is made up of cells. Cell. Are you getting that? The point is, Yes, ma'am. every living creature who is known as a living creature should have or should possess a cell. Okay, so that's why, because for every living organism to sustain on planet Earth, cell is required. Cell is known as the fundamental unit of life. Okay, Yes, ma'am. तो सवाल हमने शुरू किया था कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा पूरा स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एक्चुअली शुरू कहां से हुआ था? सेल से हुआ था. बिकॉज सेल विल बी कंप्राइजिंग, विल बी ग्रुपिंग टू फॉर्म व्हाट दे विल फॉर्म? Embryo. Start में तो. अच्छा. टिश्यूज. ओके, Right. टिश्यू टू फॉर्म Organs. organs. Organ will group to form. Organ system. Very good. An organ system will be forming a Organism.
living organism. Are you getting these points? Is that clear? Any doubt from here? You can let me know. No, ma'am. Okay, so that's why, because our complex structure are made up of the fundamental or the basic unit, that is cell, and each and every function which is required to sustain on planet Earth is carried out in the cell. That's why cell is known as the fundamental unit of life or structural or functional unit of life. Okay. Yeah. So every living organism or every living creature on the planet Earth needs to sustain. Okay. So where this definition is not applicable, any organism on planet Earth, Devashish, जिस पर ये definition नहीं जाएगी? Ma'am, I guess like just single celled है उन पे शायद. Why? Single cell. See, I told you, single cell, like amoeba, for example. हाँ. So amoeba will also be having the fundamental unit of life. So all those functions, वो सारे function जो मेरी body में multiple cells perform कर रहे हैं, वो function Ma'am, amoeba में basic single एक cell second. perform कर लेगा. Ma'am, अच्छा, मैं फिर वापस से question. dead bug cells. क्योंकि देखो उनमें भी cells होते हैं, वो भी कुछ कर ही रहे होते हैं. तो फिर वो dead नहीं हुआ ना. मैं देखो मैं वापस से क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ. मेरा क्वेश्चन ये था, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो प्लैनेट अर्थ पर सस्टेन कर रहा है बट उसके पास सेल नहीं होता. डेड Dark सेल होने का matter. मतलब भी तो देवाशीष ये हुआ ना कि कभी उसके पास लिविंग सेल था. हाँ. You know तो जब कोई cell. You know a creature which is currently causing so many problem worldwide. Ma'am, corona virus थोड़ी ना होगा. Virus. Now you got the answer. Very good. So when it अच्छा. comes to viruses, how you will define virus? A disease causing pathogen. But it's not necessary every virus will be causing disease. But yeah, when it comes to viruses, they are known as the link between living and non-living. What they are known as? Link between living and Living, non-living. Why this definition is given for them? Because अगर हम बात करें outside our body, किसी host की body के बाहर, like for viruses we are the host. For example, ऐसा नहीं है कि हम ही host होते हैं. There are plant viruses also, there are other living organism viruses also. But अगर ठीक है कोरोना की बात करें, कोविड वायरस की बात करें, तो हम host थे. तो हमारी body के बाहर जो virus है will behave like a non-living organism or non-living thing. Correct है ना? Body के बाहर it will be like a non-living thing. But जब वो मेरी body में enter करेगा, it will be getting the machine in my body. और उस machine का नाम क्या है? Cell. तो मेरी body में जब virus enter करता है, they will be getting the cell in my body. और ये मेरी body के cells का functioning utilize करके अपना number increase करने का काम करेंगे. Are you getting that? So एक और definition देती हूँ. You know, hijackers होते हैं, है ना? जो किसी और के चीजों को अपना बना लेते हैं, है ना? तो genetic hijackers कहा जाता है इनको. Why they are known as genetic hijackers? Because they hijack the machinery of a living organism for their own benefit. Clear? Are you getting that? Yes, So you ma'am. need to remember what? That virus is, अगर आपसे कोई पूछे कि virus living है या non-living है, so what will be the answer? They are the link Living. between the living and the non-living world. Mostly scientists उन्हें living मानते हैं, but जो आपको याद रखना है इस chapter के लिए, viruses don't have cell in them. Virus cellular entity नहीं होती है. So make a note in your notes and note this down that viruses do not have cell. इनमें cell नहीं होता है. ठीक है? So they are acellular bodies. They don't have a cell in them. Okay. ऐसे पढ़ा था 9th क्लास में जैसे आज स्टार्ट किया मैंने. नहीं मैम. मैम 9th में तो मैं एग्जाम से बस पहले पढ़ता था. चलो ओके. सो अब कुछ इस तरह से पढ़ना. देखो सी ऑलवेज लाइक टेकिंग द थिंग्स लाइक studies are to crack the exam. Okay, for sure you will crack the exam if you will study, but studies are not only for cracking the exam. सिर्फ एग्जाम पास आउट करने के लिए नहीं होते. They are actually for learning the things, for letting us know about the environment and our surroundings. पूरा का पूरा साइंस अपना सराउंडिंग जानने की बात होती है. अब अगर आपको एज अ ह्यूमन बीइंग अपने सराउंडिंग के बारे में नहीं पता है, देन हाउ यू विल बी सर्वाइविंग. करेक्ट है?
सर्वाइव करने के लिए अपना सराउंडिंग का पता होना चाहिए। ओके चलो, Yes, ma'am. तो नाउ व्हेन इट कम्स टू सेल, अब भी हमने सेल का डेफिनेशन दिया था। अब अगर बात करें इससे रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज की, तो इससे रिलेटेड जो डिस्कवरी हुई थी, पहले सबसे पहले बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की। तो सेल डिस्कवर किसने किया? साइंटिस्ट नेम? Robert Hooke. हाँ, दैट इज Robert Hooke was the first scientist who let us know about the small structure, जिसको सेल बोला गया बाद में। रॉबर्ट हुक ने सेल वर्ड नहीं दिया था, दे यूटिलाइज, एक्चुअली पहले क्या चलता था ना बायो के अंदर, बड़ा पुराना टर्मिनोलॉजी, ग्रीक टर्मिनोलॉजी चलता था, दैट्स अ डेड लैंग्वेज। तो ज्यादातर टर्म्स कहीं ना कहीं पर हमारे ग्रीक या फिर लैटिन लैंग्वेज से निकल कर आए हैं। Yes, इट ऑल्सो ma'am. फ्रॉम अ वर्ड, उस ग्रीक वर्ड का नाम है सेल्यूला। अब इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स, मैम बट ऐसे कुछ नहीं हुआ था लाइक रॉबर्ट हुक ने जब लाइक सेल्स वगैरह को इमेजिन लाइक एग्जामिन वगैरह किया था तो उसको लाइक वो मॉनेस्ट्री के वो सेल्स वगैरह याद आए थे, कुछ हाँ, ऐसा उसे था। कुछ नहीं पता था, बिल्कुल करेक्ट है। उसे सेल के बारे में कुछ नहीं पता था, है ना? पॉइंट टू बी नोटेड, ये बातें शुरू कहां से हुई? सो रॉबर्ट हुक को क्वेश्चन ये था कि जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं इनमें होता क्या है। अगर इनको आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर मैं कोई अनियन हाथ में ले रही हूँ तो एक्चुअली अनियन में है क्या, अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखूंगी तो सेल को हम क्या नेकेड आई से देख सकते हैं? नहीं ना, नहीं मैम। माइक्रोस्कोप। इसी वजह से इसको माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप यूनिट पे ऑफ लाइफ, बिकॉज यू लाइफ। रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप टू सी दैट। तो रॉबर्ट हुक यस मैम। ने अपना सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप यूज किया था। क्या यूज किया था? सेल्फ सेल्फ मेड मेड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। और इन्होंने अपना वर्किंग मटेरियल क्या लिया था, किस पर काम किया था? दैट वो इज, नॉर्मल लाइक एक सिंगल माइक्रोस्कोप था। इन्होंने काम किया था बार्क ऑफ द बार्क। ट्री, जिसको इन्होंने क्या बोला था? दैट्स दी कॉक कैम्बियम। ओके, प्लांट के अंदर ना, जैसे हमारे में होता है, जब हम 2 या 3 इयर्स के बेबी होते हैं तो हमारा स्किन बड़ा सॉफ्ट होता है, टाइम के साथ इट यस स्टार्ट मैम। गेटिंग लिटिल हार्ड। वैसे प्लांट्स के साथ होता है, स्टार्टिंग में सॉफ्ट स्टेम होती है, थोड़ा टाइम के साथ बार्क का डेवलपमेंट होना चालू होता है। तो जो सेकेंडरी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दे आर बेसिकली द कैम्बियम एक्टिविटी जो प्लांट्स में होती है। ओके, अगर आप बायो ऑप्ट करते तो वो हायर स्टैंडर्ड्स में आता। अभी के लिए दैट वाज द कॉक, एंड दे गॉट द कॉक फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। जब उन्होंने इसे अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आया। ओके, एंड क्योंकि वो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप का इतना पार नहीं था कि वो डिटेल स्ट्रक्चर अंदर देख पाए, तो उन्होंने बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्ट, क्या मटेरियल लिया उन्होंने? ये दैट्स दी प्लांट मटेरियल, करेक्ट ना? जो प्लांट मटेरियल यस। में उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि ये कुछ ना हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, जहाँ पे हनी भी रहती है, यस मैम। मधुमक्खी का छत्ता ये कहते हैं हिंदी में, हाँ। सो हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है, दैट इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, एंड अंदर कुछ नहीं होता इसमें। इसका मतलब कैसा है ये? इट इज लाइक अ, खोखला। हाँ, एम्प्टी कंपार्टमेंट। समझे कि वो वर्ड कहाँ यस से आया? मैम। इट इज लाइक एन एम्प्टी कंपार्टमेंट, अंदर कुछ नहीं होता है। बट क्या ये सही था? दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि नहीं। वो डिटेल स्ट्रक्चर नहीं देख पाए थे। वन मोर पॉइंट टू नो हियर इज, क्योंकि उन्होंने क्या लिया? उन्होंने प्लांट मटेरियल लिया। एक्चुअल बताओ उन्होंने क्या देखा होगा बाहर? ये प्लांट में आउटर मोस्ट क्या होता है? सेल वॉल। वेरी गुड। सो रॉबर्ट हुक इज ऑल्सो नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ, सेल वॉल। यस, तो ये रॉबर्ट हुक के जिन्होंने हमें किसके बारे में बताया? सेल वॉल के बारे में बताया। क्लियर हुआ? सो दैट वाज, अब यस विल मैम। रीड इट अगेन ना, कि सेल का डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। टू बी नोटेड, क्योंकि मटेरियल इन्होंने प्लांट का लिया था, तो इनको किसकी डिस्कवरी के लिए जाना जाएगा? सेल वॉल। डेड सेल। कैसा डिस्कवरी? डेड डेड सेल का सेल। डिस्कवरी। ओके, तो उन्होंने डेड सेल में देखा था। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर आपके कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया है, आंसर विल नॉट बी रॉबर्ट हुक, द आंसर इट विल वुड बी बी एंटनी वैन लीeuwenhoek. we'll talk about them also. So we'll just make it loud like na notes. Cell
It's also known as microscopic unit because the first discovery of cell was done by utilizing the self-made microscope by Robert Hooke. He utilized the bark of the tree, that technically the cork material of the plant, and also known for the discovery of the dead cell और the first cell, क्योंकि सबसे पहले डिस्कवर किया, इसलिए अगर क्वेश्चन में फर्स्ट सेल लिखा हुआ होगा तो भी रॉबर्ट हुक का नाम आएगा. And according to him, cell is like an empty compartment resembling honeycomb structure, and he is actually known for the discovery of cell wall in the plants. Is that clear? Any doubt? Yes, ma'am. Let me know. No, ma'am. Okay, so every day now when you'll be making the notes, now go through those notes, and in the next class we'll first start discussing the questions, and I'll ask you the questions, and if you have any doubt you can also let me know. Okay, चलिए, so it was, हाँ, year बताओ. वैसे कोई year पूछता नहीं है, but still when it comes to Robert Hooke, he had discovered the cell 1964, I guess. 1965 or 64? 64, I guess. Yeah, that is correct. Okay. Now, let's get to the next page. Okay, yeah, one more thing I was wanting to know from your side. Which book is there for you in school? Publication I Ma'am, want to this know. one. Selena, I guess. Selena, na? Okay. Now, mostly the publication utilizes Selena, but still I was wanting to just confirm that. Ma'am, this one I'm showing. Yeah, okay. Just a second. Okay, so we'll start with the next point. Hi, yeah. Okay, when you had studied the year, I Ma'am, asked in this ninth. question. Huh? In ninth class. Ninth. So is that you're sure about this? Is that Yes, ma'am. 64? Ma'am, I What's guess the, it's 1960. I guess it is 18 or 19. कुछ ऐसा था. also I got the incorrect reply from your side, but my question is, that day I had corrected you, but still I'm getting the incorrect reply. Nah, wait a minute. That is 1665. What is that? 1665. And that day also I got the same reply from your side, 1965. What is so special about that year? I want to know today. Okay, Ma'am, so I don't know, ma'am. It's like very easy to, easy to Okay. learn. So, but yeah, remember, nobody will be asking you the year. And if I'm not wrong, I was actually opening your book. Okay, in your book also years are not given. Am I correct? Yes, ma'am. Even the discovery of the scientist is not given there. Yes, ma'am. It is Yeah. not. So it will not be asked to you. Year are actually not asked. Even for the 11th and 12th, years are not asked. Okay. But the only thing is because that day I asked you the question, today also I got to that. Okay. No problem. Okay. Now you'll need to remember this. That is 1665. 1665. Somewhere, no, it is written like that also. 1664 to 1665. Okay. Why they are writing like that? Because the whole year he had taken for the different type of discoveries what he had done. Okay. So Okay, yes, ma'am. don't get confused with the year. Now, next is one more scientist we have. His name is Antony von Leeuwenhoek. Okay. So who was he? Do you know his history? Ma'am, I know that he was the first one to discover, living Living cells. cells. Yes. Okay, but we'll talk about him also. Okay, because he is very important to us. Why? I'll tell you. So, अगर बात करें एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक in the spelling ना some or the other places you can also see the spelling Antonie. Okay, so some write IE and some when we can write Y also. Okay, you know na two type of dictionaries are there, US and UK dictionary. Okay, so that's why IE or Y can be written like that. Okay, so अगर बात Okay, करें ma'am. इनके बारे में, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक was not a scientist. सबसे पहली बात, साइंटिस्ट नहीं थे. He was a watch merchant. आप जानते हो वॉच मर्चेंट कौन होते हैं? जो घड़ियां बनाते हैं. ओके, और जो सही है। वॉच बनाते हैं आपने देखा है, इफ यू हैव अ वॉच इन योर लाइक, अगर हम बात करें जो हैंड वॉच होती है, बहुत बहुत बारीक बारीक सुई होती है उनकी, है ना, नीडल हाँ बहुत मैम। स्मॉल होता है. तो क्या करते थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक? ही ऑलवेज यूज्ड टू हैव द मैग्नीफाइंग ग्लास. क्या रखते थे ये?
मैग्नीफाइंग ग्लास पहन के रखते थे। अब अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास पहन रहे हैं, इसका मतलब हमें हर छोटी चीज बड़ी नजर आएगी। करेक्ट है। तो होता क्या था कि जब भी ये एक दिन ऐसे ही वॉच का काम कर रहे थे, और उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, वो रेनी सीजन था। तो आपने कभी नोट किया है देवाशीष, कि कभी जब बारिश होती है तो छोटे छोटे से पॉन्ड्स भर जाते है ना, छोटे छोटे हाँ से मैम। डेब्रीज क्रिएट हो जाती है वाटर वाली। और आपने कभी नोट किया है कि उन डेब्रीज को अगर ध्यान से देखो तो उनमें कुछ मूवमेंट नजर आता है। हैव यू सीन दैट? वाटर मूवमेंट नजर आता है अगर कहीं पर पानी भर जाता है। ओके, सो इनके साथ क्या हुआ कि एक रेनी सीजन के दौरान जब ये घर वापस जा रहे थे, ही हैड दोस मैग्नीफाइंग ग्लास ऑन हिज आई। तो इन्होंने देखा कि कहीं पर भरे हुए पानी के अंदर कुछ मूवमेंट शो हो रहा है। ये उस वाटर को घर लेकर आए, इन्होंने फिर से अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस वाटर को स्टडी किया। और क्या बताया वाटर को स्टडी करके? सो इन अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, तो इन्होंने डिस्कवरी किसकी की, कहा कैसे की थी सेल की? इन अ droplet of water. So in the droplet of water, he had discovered the animalcules. What are these animalcules are? Animalcules means small, एनिमल क्यूज। small, motile, animal-like organisms. मैम बट इनने लाइक मस्कीटो के फिर लार्वे नहीं देखे थे क्या? नहीं, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात कर रहे हैं। मॉस्किटो का लार्वा हमें दिख जाएगा आईज से। ओके, तो मैंने क्या बोला, इन्होंने उस वाटर में मूवमेंट देखा पानी के अंदर, और उन्होंने उस वाटर को किससे स्टडी किया? इन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन्होंने फिर से क्या यूज किया था उसके लिए? माइक्रोस्कोप। और उन्होंने माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उन्होंने बोला कि उस पानी के अंदर मिलियंस ऑफ स्मॉल स्मॉल मोटाइल ऑर्गेनिज्म। यू नो द वर्ड मोटाइल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट द वर्ड नो मैम। मोटाइल मीन्स? मूवेबल, जो मूव कर सकते हैं ना, ओके। उनके लिए वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो स्मॉल मोटाइल मीन्स जो मूवेबल ऑर्गेनिजम्स है, तो एनिमल की तरह, एनिमल मूव कर सकते हैं, प्लांट नहीं कर सकते। तो इनके हिसाब से यस मैम। वो सारे एनिमल्स जो नॉर्मल एनिमल से छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, पर मूव कर पा रहे हैं, इन्हीं को इन्होंने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया देवाशीष? माइक्रोब्स। माइक्रो। And for this, Antony van Leeuwenhoek is known as the, oh, why it's not changing? He's known as the father of microbiology. So there is a branch of science which deals with the study of microorganisms. That is known as मैम microbiology. आई तो न्यू जस्ट टू थिंग्स, बोटानिया एंड जूलॉजी। Uh, yeah, there are many different fields also, like biotechnology, okay, like microbiology, pathology. So the people who go for the medicines and the other different branches, na, they study these all. So the study of microbes is known as microbiology. So who is known for the माइक्रोबायोलॉजी। discovery of microbes? Antony van Leeuwenhoek. एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। Microbes are the living organisms. यस मैम। So Antony van Leeuwenhoek is also known for the discovery of लिविंग ऑर्गेनिज्म। first living cell. Are you getting this? लिविंग। यस मैम। Okay. So see, I am actually, I know this is not in your book, but I'm telling you some small general information which you need to keep in mind. Okay. यस मैम। Because see, when it comes to now, I don't know in 11th what subject you will be taking, but when it comes to the current class also, if you'll go for the Olympiads and the other such examination, these sort of questions are asked there. Okay. चलिए, सो ये क्लियर हुआ। तो पहला लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया है? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। पहले सेल यस की मैम। डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। डेड सेल मटेरियल की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। सेल वॉल का डिस्कवरी किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। क्लियर? यस हमें मैम। सिर्फ ये दो ही साइंटिस्ट पढ़ने, क्योंकि आपके कोर्स में और साइंटिस्ट नहीं है, तो आई नॉट बी टेलिंग यू दैट। ओके, चलिए। सो नाउ कम्स टू डिस्कवरी हो गई सेल की। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये कैसे पता लगा? तो देयर वाज साइंटिस्ट, आपने सेल थ्योरी पढ़ा है? यस मैम। हु हैड गिवन द सेल थ्योरी?
Ma'am, Theodor, Theodor हाँ Schwann, then Matthias Leiden, हाँ, and third, एम शेल्डन, करेक्ट। फिर मैथियस वर्शो कुछ ऐसा सा था, आई डोंट रिमेम्बर अच्छे से। ओके, आई टेल यू, दैट इज एम, ठीक है, यू कैन लाइक पूरा नाम इनका मैथ्यू शेल्डन है, बट यू कैन कीप इन माइंड शेल्डन एंड श्वान, इस थ्योरी को ऐसे बोलते हैं, दैट इज थियोडर श्वान। Schwann, ओके, बट थ्योरी में जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होता है शेल्डन एंड श्वान। तो सेल थ्योरी okay किसने ma'am, दिया? शेल्डन और श्वान ने, और इन्होंने सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स दिए। अच्छा, अभी आप जो बॉटनिस्ट और zoologist की बात कर रहे थे, जो शेल्डन थे, ही वाज अ बॉटनिस्ट। चलो ठीक है, व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड हियर इज, रहने दो, फिर वही याद रह जाएगा। तो शेल्डन एंड श्वान, दे वर दी, लाइक उन्होंने प्लांट्स पर काम किया, एनिमल्स पे काम किया, सो दे आर दी बॉटनिस्ट एंड दी zoologist, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। इनके हिसाब से क्या था? ऑल लिविंग living ऑर्गेनिज्म, organisms have cell inside them, हाँ, आर मेड अप ऑफ, cells। और यू कैन राइट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ओके, एंड सेकंड पॉइंट क्या बोला था? सेल इज दी, मैम की जो भी फंक्शन होता है हमारी बॉडी में सेल्स हाँ, करता है, सेल इज दी फंडामेंटल यूनिट, फंक्शनल फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल। फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी क्या नहीं समझा पाए थे, ये बताओ, प्रॉब्लम क्या था इस थ्योरी के साथ? दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन अस कि न्यू सेल फॉर्म कैसे होता है ना? Yes तो ma'am, ये जो and ma'am एक्सप्लेन किया, Matthias Virchow said, रडोल्फ 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 Rudolf, या, हिज नेम वाज रडोल्फ वर्चो। Rudolf Virchow, पैरोना वर्चो था। हाँ, वर्चो याद रहा है ना? आर वर्ट, ही वाज, हिज नेम वाज रडोल्फ, डोल्फ वर्चो। इन्होंने क्या बोला? ही सेड न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम, Pre-existing cells, यस, अराइजेस फ्रॉम प्री existing existing cells। cells. Actually, he had said that in again Latin language, that is omnis cellula. मैम लैटिन चीजें तो नहीं लर्न करनी ना, हाँ लैटिन चीजें तो लर्न नहीं करनी ना। हाँ, नहीं मतलब जो उन्होंने लैंग्वेज बोली थी वो ये थी, क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है, omnis cellula e cellula, that means new cell arises from the pre-existing cell. Okay, and by adding this third point, ये थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, और ये थ्योरी बन जाती है मॉडर्न सेल थ्योरी। ओके, और जब तक आपसे मॉडर्न सेल थ्योरी ना बोला जाए, तब तक सेल थ्योरी में सिर्फ ये दो पॉइंट इंक्लूड होते हैं, ठीक है? तो दिस वाज अबाउट दी सेल थ्योरी, मतलब सेल का डिस्कवरी हो गया, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वैलेंटिनोक ने किया। देन उसके बाद सेल क्या है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो इन तीन साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलती गई, जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करें या फिर किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप ऑफ द सेल्स आर फाउंड। क्यों डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप के सेल्स मिलते हैं? व्हाट इज द मैम क्योंकि उनके बेनिफिट? डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। वेरी गुड। सो स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो डिपेंड किस बात पे करता है? क्या फंक्शन प्ले करना है। तो अकॉर्डिंगली, मतलब कहने का ये है कि पहले फंक्शन पता होना चाहिए, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर डिसाइड आउट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, यस मैम, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी क्या होता है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का यस, लॉन्गेस्ट सेल क्या है? न्यूरॉन। हाँ, वेरी गुड। सो different shape and size of cell is depend लिख देते हैं, cell depends on फंक्शन। function, need to be performed। तो जो फंक्शन परफॉर्म करना है, तो हाईलाइट यहाँ पे क्या होना है? फंक्शन। तो जो फंक्शन परफॉर्म करना है उसके हिसाब से शेप और साइज डिसाइड होता है, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, वील कंपेयर लाइक एलिफेंट एंड एन आंट, दोनों में शेप डिफरेंट होगा सेल का या साइज डिफरेंट होगा? साइज डिफरेंट होगा मैम। साइज डिफरेंट होगा। इसका मतलब है कि एलिफेंट के बड़े होने की वजह से उसमें बड़े सेल्स होंगे, साइज बड़ा होगा सेल्स का, हम में छोटे होंगे। मैम ऐसा नहीं है, लाइक नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो गए। वेरी गुड,
समझ में आया? तो शेप और साइज वो फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा उस पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बोलना चाह रही थी। क्लियर हुआ? मैम तो बट अगर हम मैम बट अगर हम एक न्यूरॉन देखें तो एलिफेंट्स का तो बड़ा ही होगा आई गेस। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता, मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे न्यूरॉन का साइज और एलिफेंट के न्यूरॉन का साइज डिफरेंट होगा। हाँ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन किसी भी सेल का अपना इंडिविजुअल साइज होगा। क्लियर हुआ? तो एलिफेंट में भी न्यूरॉन लंबे होने वाले, मेरे केस में भी न्यूरॉन लंबे होने वाले। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? क्या फंक्शन है न्यूरॉन का? दे विल बी मैम वर्किंग एज डिफरेंट इम्पल्सेस ब्रेन तक लेके जाने हैं। cables. They have the function like a cable. वो हमारे ब्रेन को हमारे वेरियस आप ये कह सकते हो ना वेरियस स्टिमुलेटिंग ऑर्गन से जोड़ने का काम करते हैं। ओके, सो ब्रेन से सिग्नल आएगा, हमारे रिसेप्टर्स तक जाएगा, और रिसेप्टर से जो भी सिग्नल ब्रेन तक जाएगा सब कुछ कैरी करने का काम न्यूरॉन्स करेंगे। सो दे नीड टू बी लॉन्ग ताकि वो केबल जैसा काम कर सकें। क्लियर हुआ? आरबीसी की बात करें, आरबीसी का शेप तो इसलिए बायोकॉन्वेव होता है, क्यों होता बायोकॉन्वेव है? कॉनकेव। पास न्यूक्लियस नहीं होता, और आरबीसी के पास न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? क्योंकि आरबीसी को जितना हो सके उतना ऑक्सीजन कैरी करना है। टू यस इंक्रीज मैम। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे नीड टू बी एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। क्लियर? सो दिस पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर। तो एलिफेंट एंड आंट कंपेयर करें तो नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट होंगे, साइज और शेप का मैटर नहीं है। साइज और सेल का शेप डिफरेंट नहीं होगा, मैटर नहीं। बिकॉज बोथ विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ आंट्स। अगर हम बात करें एलिफेंट्स की, अगर हम बात करें तो एलिफेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर आ रहा है, आंट किस में आती है पता है? पढ़ा है क्लासिफिकेशन पहले? यू हैव दिस क्लासिफिकेशन? मैम मैम वी डू बट आई डोंट रिमेम्बर। आंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? दे आर दी मैमल्स हैं क्या आंट? नहीं मैम, फिर इससे नहीं है। पढ़ा है आपने? मैं पूछ रही हूँ आपसे कि एक एनिमल किंगडम पढ़ा है सेकेंड पहले? मैम, इंसेक्ट्स में आती है। इंसेक्ट्स में आते हैं, वेरी गुड, दैट इज आर्थ्रोपोड्स। क्या होता है? यस मैम, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स। है ना? जबकि एलिफेंट्स मैमल है, वर्टिब्रेट कैटेगरी में आता है। चलो आंट तो डिफरेंट कैटेगरी से आ गई। अगर मैं आंट के अलावा एलिफेंट को यहाँ पर किसी बैट से, बैट तो फिर वही मैमल हो जाएगा, अगर मैं इस एलिफेंट को किसी फिश से भी कंपेयर करूं तो भी वही बात होगी, नंबर ऑफ सेल डिफरेंट, नंबर ऑफ सेल डिफरेंट हो सकता है, शेप एंड साइज नहीं। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, चलिए। सो अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले तो आरबीसी का शेप कैसा? डिस्क शेप की होती है, डिस्कॉइड। ओके, क्या करती है आरबीसी? ऑक्सीजन अगर हम कैरी आरबीसी, करती है। ऑक्सीजन कैरी करती है। कैसे ऑक्सीजन कैरी करती है? आरबीसी के पास क्या होता है? हेमोग्लोबिन। हाँ, इसका लाइफ स्पैन होता है कितने दिन का? 120 डेज का 120 लाइफ डेज। स्पैन होता है ना? और बताओ, अच्छा लॉन्गेस्ट सेल की बात कर रहे थे, अच्छा स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है हमारी बॉडी में? स्मॉलेस्ट सेल मैम आई गेस आरबीसी होता। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट है। तो लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल लिखेंगे अपन ना, न्यूरॉन नहीं लिखेंगे, दैट इज द बंडल, तो दैट इज नर्व सेल। तो लॉन्गेस्ट होता है आरबीसी, स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट। सेल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ऐसे लार्जेस्ट सेल क्या है प्लैनेट अर्थ पे? मैम न्यूरो सॉरी नर्व सेल। प्लैनेट, प्लैनेट अर्थ पे लार्जेस्ट सेल ऑन प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट दैट अर्थ इज मैम, आई डोंट थिंक। ऑस्ट्रिच एग, हाँ। largest single cell on planet Earth. Have you studied this? Largest यस यस मैम। single cell on planet Earth is ostrich egg, and smallest is रेड सेल। आई गेस वायरस। no. But I told you virus will not come under the category of cell. Cell ही नहीं होता तो अच्छा फिर अच्छा हाँ। कैसे होता है? They are अमीबास, यीस्ट। no. That is mycoplasma, and mycoplasma is a bacteria. हाँ right. Okay, also known as PPLO. Mycoplasma, or it's basically a bacteria, type of bacteria, that is the smallest cell on planet Earth. Let me see your book ना, साइज नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं आपको साइज नहीं लिखवा रही, क्योंकि इट कैन वेराई फ्रॉम बुक टू बुक। हाँ, बुक में नहीं Yes, लिखा ma'am. हुआ है।
ओके इसलिए आजकल ना बुक में साइज वगैरह देना बंद कर दिया, क्योंकि आप कहीं पर भी पढ़ोगे देयर विल बी डिफरेंट साइज रिटन फॉर देम। ओके चलो कुछ और एग्जांपल्स आपकी बुक में लिख रखे हैं। ओके यू हैव द बुक ना इन फ्रंट ऑफ यू, आई विल रीड दैट Yes, आउट। ma'am. Okay, so they are saying about like small cell दे रखा ना, small cells are certain bacteria. Are you getting this? Bacteria सबसे small कौन सा हुआ? I'm reading ना 1.3. मैं करेक्ट हूँ? यही है ना आपका बुक में? Cell how small? Yes, ma'am. हाँ Okay, हाँ. तो यहाँ पे लिखा हुआ है cell are very small and can be seen only with the microscope. Smallest cell is certain bacteria. Are you getting it? किस certain bacteria की बात कर रहे हैं? नेम याद Yes, रहेगा? ma'am. माइकोप्लाज्मा और ऑल्सो नोन एज Mycoplasma. पीपीएलओ। ओके आरबीसी, PPLO. आरबीसी सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसमें हो गया? अर्थ पर Human आरबीसी body. सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, ह्यूमंस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट होता है। देन लॉन्गेस्ट सेल क्या Yes, हो ma'am. गया? नर्व सेल हो No गया। cell. हवा इसके अंदर ना। लार्जेस्ट सेल क्या है? बर्ड एग। कौन सी बर्ड का एग? Ostrich egg. egg. Okay, so before development, the largest single cell on world today होता है ये। Okay, the average size of the adult human is approx 1,000 million cells in the whole body. 10,000 million तक जा सकता है। 25 million RBCs होती है। 30,000 million white blood cells होते हैं। So different cell have different number. तो बात समझ में आई कहाँ से शुरू किया था अपन ने कि साइज के हिसाब से नंबर डिफरेंट हो सकता है, ये भी नेसेसरी नहीं है। ओके चलिए देन वी हैव द शेप, डिफरेंट शेप का होता है। और शेप डिफरेंट कैसे होगी? अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे विल परफॉर्म। अगर फंक्शन वाइज शेप की बात करें तो न्यूरॉन का शेप कैसा होता है? नर्व सेल का शेप मैम एक कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, लाइक आप कैसा बताऊं? स्पिंडल शेप। स्पिंडल कैसे? शेप. स्पिंडल शेप के होते हैं और शेप को स्पिंडल शेप कहते हैं। ठीक है आगे हम अगर बात करें आरबीसीज की, अभी हमने आरबीसीज की शेप की बात की थी। बुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर एग्जैक्ट? देखो बताओ मैम को। Different shapes of cells are often हाँ related. आप देख रहे हो शेप क्या मैम तो लिखा हुआ है? basically आरबीसीज सर्कुलर, bioconcave and circular. सर्कुलर एंड बाय कॉनकेव होती है। ठीक है देन वी हैव दी डब्ल्यूबीसीज। व्हाइट ब्लड सेल जानते हो क्या काम करते हैं? आरबीसी तो ऑक्सीजन Ma'am, कैरी they करती है। fight against हाँ दे आर द pathogens. पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। कैसे याद रखोगे? पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम Immune होते हैं। system. इनका शेप कैसा होता है? अमीबॉइड। अब ये शेप को समझो, अमीबॉइड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द हाँ वो मीनिंग शेप ऑफ? चेंज हो सकती है. वेरी गुड, कैन चेंज देयर शेप। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आरबीसी तो नहीं कर रहा शेप चेंज, तो फिर डब्ल्यूबीसी क्यों कर रहा है शेप चेंज? तो फिर से आंसर वही आएगा, क्योंकि उसको ऐसा फंक्शन परफॉर्म करना है। कभी भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई पैथोजन, कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा, तो उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के पास फाइट करने के लिए किसको पहुंचना पड़ेगा? डब्ल्यूबीसी को। WBCs. तो मतलब डब्ल्यूबीसीज को हमारी जो बॉडी के अंदर पूरा सिस्टम है वेसल्स वाला, आर्टरीज वेन्स होती है हमारे पास, उनके थ्रू मूव करना पड़ेगा। तो उनके थ्रू मूव करने के लिए आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसीज का शेप ऐसा होना चाहिए कि अपना शेप क्या कर सके? चेंज कर सके, जहां चाहे छोटी हो जाए, जहां चाहे बड़ी हो जाए। तो इसी वजह से मैम क्योंकि वो मैम इम्यून, हाँ मैम बट बोलो एक मेरा क्वेश्चन है. बोलो। लाइक नाइन्थ में मैंने पढ़ा था कि लाइक अगर हाँ हमारा जो लाइक वो है, अगर हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स मरते हैं तो वो बेसिकली पस की तरह बाहर निकलते हैं, राइट? हाँ करेक्ट है, पसल्स। तो मैम जब भी लाइक मैं बुखार, लाइक जब भी मैं बीमार वगैरह करता हूँ, तो बट मेरे लाइक मैंने आज तक कभी नोटिस नहीं करा कि पस निकल रहा है मेरी बॉडी से. नहीं तो इस तरह से पस नहीं निकलेगा ना, अगर कोई शरीर में कट है तो उसके थ्रू निकलेगा। ओके पर पॉइंट इज कि अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर से, मैंने आपको आरबीसी का बोला, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है, करेक्ट है? तो फिर आपका सवाल होना चाहिए कि मैम 120 डेज बाद ही कहाँ जाती है? तो 120 डेज बाद एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जिसका नाम है स्प्लीन। क्या नाम है? स्प्लीन। इस प्लीज. स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोला जाता है आरबीसी का, वहां जाके आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वैसे ही फाइटिंग के दौरान अगर डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रॉय होती है, तो कोई भी सेल जो शरीर में डिस्ट्रॉय हुआ वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू रिमूव आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ है ना? तो यस. बॉडी के पास क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है। अब इस कंडीशन में आप जो पस वाली बात कर रहे हो ना, मैं आपको समझाती हूँ। अगर हमारे शरीर में कहीं पर कट लगता है और उस कट के थ्रू कोई इंफेक्शन होता है, तो उस इंफेक्शन की साइट पर सबसे पहले फाइट करने को कौन आएगा?
WBC आएगी। WBC। और WBC जब आएंगे तो वहां पे आपने देखा पस का फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, तो पस एक्चुअली डेड सेल होते हैं, समझे? तो वो जो पस वाली बात है वो किस पर अप्लाई होती है? किसी कट के ऊपर, इंजरी के ऊपर। क्लियर हुआ है ना? और यस फिर वहां मैम। पे धीरे धीरे क्लॉट बन जाएगा। क्लॉट कौन बनाएगा? प्लेटलेट्स। तो 3 तरह के सेल, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉट बनाने का। क्लियर हुआ? अब समझ में आया? ओके। यस मैम, बट मैम एक सेकेंड, हमारे सेल में फिर हाँ, लाइसोसोम्स भी तो होते हैं ना, जो लाइक सुसाइडल बैग्स होता है। सेल के अंदर, पर वो सेल के अंदर है ना। अच्छा, तो मतलब अगर कोई वायरस आएगा जो लाइक होस्ट बनाना चाहेगा तो वो हाँ, तो वहां फट जब जाता है। कोई सेल के अंदर एंट्री करेगा वहां टारगेट कौन करेगा? WBC तो खुद ही एक सेल है ना, समझ रहे हो? यस मैम। है ना? तो अगर सेल में एंट्री करेगा तो सबसे पहले टारगेट कहां पे किया जाएगा? लाइसोसोम में। उन्हें सुसाइडल बैग्स कहते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। मैम बट तो चल, उससे हाँ, पूरा सेल ही नहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा? नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये कहीं पढ़ाया गया हो अगर आपको, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर केस में जब अटैक हो वायरस का या किसी भी पैथोजन का या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का, तो पूरा सेल किल हो जाए। नॉट नेसेसरी। सेल किल तब होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, जब लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं। ओके। अगर वो बर्स्ट नहीं होंगे तो सेल वैसा ही रहेगा। उनके बर्स्ट होने की वजह से जो एंजाइम्स उनमें होते हैं वो सेल में रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सेल की डेथ भी हो जाती है। बट ये हमेशा नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होता, देवाशीष सोचो, तो सोचो रोज हमारे आसपास से कितने सारे पैथोजन बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर तो हमारा हर सेल बर्स्ट हो जाता और सारे सेल खत्म हो जाते तो हमारी डेथ हो जाती। पर ऐसा होता तो नहीं है ना, है ना? क्यों नहीं होता? क्योंकि इन एवरी कंडीशन लाइसोसोम पावरफुल साबित होते हैं। लाइसोसोम्स किल नहीं होने देते हमारे सेल को। बट जब लाइसोसोम्स को लगे कि अब हमारी पावर नहीं है, हम फाइट में हार जाएंगे, तब वो पूरे सेल को किल कर देते हैं। और फिर वो सेल को क्यों किल कर रहे हैं? ताकि आसपास के जो सेल्स हैं, जो अभी भी हेल्दी सेल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर है ना? मैं तो मर रहा हूं बट मैं जाते जाते दूसरों को बचा जाऊंगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट चलता है वहां पे। अच्छा, और बताओ और क्या शेप लिखी हुई है? WBCs की शेप की हमने बात कर ली। देन वी हैव और नर्व सेल्स। मैम, एक बहुत बड़ी एग्जांपल दे रखा है प्लांट्स के और अंदर। मैम फिर गार्ड सेल्स का भी है। हाँ, ये कहाँ होते हैं गार्ड सेल्स? मैम बेसिकली जब हमारे लाइक प्लांट सेल में होता है लाइक हम्म। वहां पे लाइक जहाँ पे जहाँ पे बेसिकली लाइक फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, ओके, वेरी ये गुड। गैसेस इन एंड आउट करता है शायद से। हाँ, इन्हें सेल्स को है ना, देखो बताती हूँ। लीफ के अंदर, जैसे लीफ हो गई एग्जांपल के लिए, ग्रीन पार्ट्स, उनमें जो सेल्स होते हैं उन्हें मीजोफिल सेल्स कहा जाता है। यही वो सेल्स है जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, जो क्या परफॉर्म करते हैं? जो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब इन मीजोफिल सेल्स में यहीं पर ही छोटे छोटे से सेल्स पाए जाते, किडनी शेप के, किडनी बीम शेप के। इन सेल्स को बोला जाता है गार्ड सेल्स। तो किडनी बीम शेप के सेल्स जो क्या करते हैं, एक ओपनिंग और क्लोजिंग को गवर्न करते हैं, उसे स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा इज बेसिकली दी, एक पोर होता है स्टोमेटा। क्या होता है? एक पोर, चलो मैं ओपनिंग ही लिख देती हूँ। एक ओपनिंग होता है जिसके थ्रू क्या परफॉर्म किया जाता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी टेकन इनसाइड एंड ऑक्सीजन इज गिवन। तो गार्ड सेल अगर स्वेल करते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, गार्ड सेल श्रिंक करते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो ये गार्ड सेल का शेप बेसिकली, ये प्लांट टू प्लांट डिफरेंट हो सकता है गार्ड सेल का शेप। ओके, ये बात याद रखना। जनरली कैसा शेप होता है अभी बोला मैंने? मैम वो होता है लाइक, एक सेंचुरी भूल किडनी गया। बीन शेप, किडनी बीन शेप। या बीन शेप भी बोल सकते हो डायरेक्टली। राजमे जैसा, राजमा चावल खाते हो ना, वो वाला राजमा। यस मैम। हाँ, उसी को कहते हैं किडनी बीन। हम्म। चलो, सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर्स। ओके, कभी कभार शेप पूछ ली जाती, सजा सकती, क्योंकि आपके कोर्स के अंदर है, वरना जनरली जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टैंड करता है वो ये है कि डिफरेंट शेप्स आर देयर फॉर डिफरेंट सेल्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फंक्शन दे परफॉर्म। तो फंक्शन इज द पॉइंट विच इज एक्चुअली डिसाइडिंग व्हाट टाइप ऑफ शेप और द स्ट्रक्चर द सेल विल पोजेस। ओके, ये हमें याद रखना है। एनी डाउट? एक बार चेक कर लो कहीं से भी डाउट हो तो। नो मैम, नो डाउट। श्योर? यस मैम। I told you we'll be asking question to you in next class. Okay, now यस मैम, ऑफ कोर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। थोड़ा हमने शेप एंड साइज की बात कर ली,
एक और न्यू बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज रिगार्डिंग नंबर ऑफ सेल। हमने बात किया था ना अभी कि नंबर ऑफ सेल डिसाइड करते हैं कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी से। व्हाट आर दे? One, सिंगल सेल, मल्टी सेल, yeah, unicellular organism यूनिसेल्युलर, मल्टी and सेल्युलर। multicellular organism. So when it comes to the unicellular organism, they are the one which have, क्या होगा इनमें? They have the सिंगल सेल। single celled. Now the other side we have, they are more than one cell. मतलब किसी के पास दो भी होंगे तो वो मल्टी सेलुलर के अंदर ही आएगा। ओके, अगला डिफरेंस बताओ। मैं ऐसे लिखवा रही हूँ जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। थर्ड डिफरेंस मैं मैम लिख फिर देती हूँ, है ना। थर्ड डिफरेंस हो गया एग्जाम्पल। यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल, अमीबा, वेरी गुड। एंड अमीबा याद है मैम, यीस्ट आई गेस। algae can be there. You can write like some plants. Okay, even fungus is there. Some fungus, not all, na. Like I'll write the specific one. Yeast. It's a unicellular fungus. Okay. Yeast is definitely it. Yeah, and many more. Bacteria, the most important one. They are also unicellular. Okay. While example of here, most simple one. Plants and Animals. animals. Okay. Now second difference, मैंने space छोड़ा था। आप बताओ एक और डिफरेंस यूनिसेलर और मल्टीसेलर के बीच में। मैम की there are multiple cells to do multiple functions. तो वो तो हमने लिख दिया ना, सिंगल सेल है जो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। दे हैव मोर देन वन सेल जो सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ओके, सो आई एक्चुअली वांट टू गिव यू अ टास्क। ओके, तो अगर मुझे कोई टास्क आपको देना है, सो लाइक यू आर द सिंगल वन टू टेक दैट टास्क। बट कोई टास्क ऐसा दिया आपको टीचर ने जहां पे आप चार पांच स्टूडेंट मिलकर एक साथ उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, तो बेटर कौन सा होगा? वो जो आप अकेले कर रहे हो या फिर वो जो आप सब मिलकर कर रहे हो? अब ये मत बोलना कि मैम मैं जो अकेले करूंगा वो बेटर होगा, क्योंकि जब हम साथ में सब आएंगे तो फिर हम टास्क नहीं करेंगे, फिर हम कुछ और करना चालू कर देंगे। सही मैम है। ग्रुप में तो मैम बेस्ट, मैम ग्रुप में एक ही बंदा करता है जो भी करता है। हाँ, बट स्टिल ना एफिशिएंसी वर्क की कहाँ ज्यादा होगी? लाइक आप ऐसे क्वेश्चंस भी मैथमेटिक्स में करते हो ना, वर्क डन वाले। अगर किसी हाँ काम को मैम। अगर एक कोई पर्सन है जो उस काम को 10 दिन में कर रहा है, तो अगर 2-3 लोग करेंगे तो वो 5 दिन का भी नहीं रहेगा काम। करेक्ट है। तो एफिशिएंसी ऑफ वर्क ज्यादा कहाँ आती है? जहां पर ज्यादा काम परफॉर्म करने के लिए अवेलेबिलिटी हो। तो बस यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। तो मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर क्या मिलता है? क्या मिलता है देवाशीष? डिविजन Division ऑफ of labor. लेबर। करेक्ट है। पॉइंट टू नोटिस, आई गिव यू द एग्जांपल। अगर मैं ह्यूमंस का एग्जांपल ले रही हूँ, एनिमल्स के अंदर, आई हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल dedicated for digestive system. Correct. I have the complete respiratory tract for the respiration. I have the excretory part system, that is kidney and the other parts for the excretion. So हमारी बॉडी में हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अवेलेबल है। अब अगर मुझे यही एग्जांपल अमीबा के लिए लेना हो तो वो सिंगल सेल को सब कुछ करना है। आपको डाइजेशन के स्टेप पता है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड देन इजेशन इज देयर। वो सारे फंक्शन अमीबा के सिंगल सेल को परफॉर्म करने पड़ते हैं। समझ में आया? मैम इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एब्सेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए ज्यादा सफिशिएंट या फिर एफिशिएंटली वर्क करने वाले सेल कौन से होते हैं, आंसर क्या आएगा? मल्टीसेलुलर। मल्टी सेल्युलर। Why? Because they have division of labor. मिल बांट कर काम किया जाता है यहाँ पर। ऐसा यूनिसेलुलर में नहीं होता है। नहीं होता। ओके, लिख लो। लिख लिया मैम। ग्रेट। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप, अगर हम किसी सेल की बात करें, जनरल सेल की, तो सेल इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स।
One side we have the protoplasm and the other side we have the cell wall. Protoplasm मैम क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म No, no, protoplasm is not equal to cytoplasm. साइटोप्लाज्म प्लस कुछ तो होता है, लाइक प्लस होता है गाइस कुछ। चलो यहीं पे डेफिनेशन आ इधर देखो। Protoplasm is basically the all living matter of the cell. अब समझ में आया? सेल में जो भी लिविंग यस मैम। पार्ट है, अगर आपको उसको सिंगल वर्ड देना हो तो क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म बोलोगे। तो इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आएगा? इट विल बी हैविंग दी सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग और नॉट सेल मेम्ब्रेन इट इज मैम। लिविंग ना? हाँ साइटोप्लाज्म हाँ and even the basic unit required for a cell to work, that is nucleus. ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा प्रोटोप्लाज्म के अंदर। आया समझ में? यस ओके मैम। अब सेल वॉल को अलग क्यों किया? क्योंकि सेल वॉल नेचर में कैसी होती है? जेली। डेड होती है। कैसी हाँ होती है? डेड डेड। होती है ना, सेल वॉल लिविंग नहीं होती। तो सेल, अब जरूरी थोड़ी ना कि सेल वॉल हर जगह पर एग्जिस्ट करे। हमारे पास सेल वॉल होती है क्या देवाशीष? नो मैम। नहीं होती है। किसके पास होती है? तो सेल वॉल डेड होती है, किसके पास मिलती है? प्लांट्स। और बस प्लांट्स के पास ही? हाँ मैम। नहीं, प्लांट्स की सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, जो कंटेंट जिससे बनती है उसे सेल्यूलोज कहते हैं। इसके अलावा आपको सेल वॉल देखने को मिलती है फंगस के अंदर, फंजाई में, जहां पर काइटिन की बनी हुई होती है। और बैक्टीरिया में भी देखने को मिलती है, जहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? टीडोग्लाइड। पेप्टिडोग्लाइकेन की। पॉइंट टू बी नोटेड, कहां कहां पर मिलती है आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है जानना। प्लांट्स में, फंगस में और बैक्टीरिया में। क्लियर हुआ? अब याद रहेगा सिर्फ प्लांट्स में नहीं मिलती, इनमें भी मिलती है। बस क्या देख रहे हो यहाँ पे? कंपोजिशन क्या होता है? डिफरेंट होता है। यहाँ सेल्यूलोज की मैम है, यहाँ काइटिन की, पेप्टोग्लाइकिन की, तो कंटेंट डिफरेंट हो सकता है। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है बताओगे? मैम रिजिडिटी और सपोर्ट देना। करेक्ट। सो बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। अब जो लिविंग यस नहीं मैम। है, इसका मतलब वो लिविंग फंक्शन में तो पार्टिसिपेट करेगी नहीं, तो उसका मेजर फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है। यस। जबकि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये किसका पार्ट होते हैं? लिविंग मैटर ऑफ द सेल होते हैं। इसका मतलब ये क्या किसके पार्ट होते हैं? ये प्रोटोप्लाज्म के पार्ट होते हैं। याद रहेगा कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? दैट इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। ओके। मैम सो बेसिकली न्यूक्लियस प्लस सेल मेम्ब्रेन, नहीं न्यूक्लियस न्यूक्लियस, प्लस साइटोप्लाज्म। plasma plus cell membrane. This can also be the definition, because outermost living boundary is cell membrane, then cytoplasm is the fluid, and then nucleus is the control house. ये तो हर सेल में पाया ही जाएगा अगर उसको सेल बोला जाना है तो। अब इधर देखो, तो ये सारी प्रॉपर्टीज तो सब सेल में एग्जिस्ट करती है। तो डू एवरी सेल हैव अ सेल मेम्ब्रेन? यस और अ नो? यस मैम। डू एवरी सेल हैव अ साइटोप्लाज्म? यस और अ नो? यस मैम। Do every cell have a nucleus? Yes or a no? यस मैम। नहीं। Yes, but यस। not yes, that is yes, but उसमें एक किसी डिस्क्लेमर में लगे, न्यूक्लियाइड होता है। कहीं पर न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता। करेक्ट है? तो अगर वेल डिफाइन नहीं है तो न्यूक्लियस को हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोल देंगे। ठीक है, अब सुनो। अब यहां पर इस साइटोप्लाज्म के अंदर इसका जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसको साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल इज बेसिकली दी फ्लूइड पार्ट। ओके। जबकि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट्स मिलती है सेल की, जिन्हें क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनल्स। फंक्शनल यूनिट ऑफ साइस्टल। एक सेकेंड मैम, आपने साइटोप्लाज्म के राइट लेफ्ट में क्या लिखा है? या न्यूक्लियस। नहीं नहीं मैम, लाइक साइटोप्लाज्म के नीचे के लेफ्ट नीचे में। साइटोसोल, साइटोसोल। ओके मैम। और एस मैम उसके वाई नीचे? फ्लूइड पार्ट। ओके। अनदर साइड आई हैव रिटन सेल ऑर्गेनल्स। अब आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है ऊपर, यस मैम, है मतलब ना? अब इस लाइन का मतलब दूर क्या है है। वो समझो।
इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम नोट करें तो इस लाइन के ऊपर जो कुछ भी है, मतलब सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये हर सेल में पाया जाएगा। मतलब इवन इट इज प्रेजेंट इन अ सेल दैट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। अब अगली बात हम वही यस करने मैम। वाले, जबकि ये सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक का पार्ट नहीं है, ये कहाँ मिलेंगे? यूकैरियोटिक। यूकैरियोट्स के अंदर मिलेंगे। क्या ये बात, ये समझाया क्या है मैंने? अब वापस समझो। मैम तो बस एक सेकेंड, तो प्रोकैरियोट्स लाइक बेसिकली प्लांट्स होते हैं, यूकैरियोट्स एनिमल्स होते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी यूकेरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में समझाती हूँ, ठीक है? पहले ये समझो क्या बोला मैंने। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आर फाउंड इन एवरी सेल। हो सकता है कि यस मैम। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं हो, तो फिर आप वहां पे न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड बोल दोगे। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकेरियोट दोनों में मिलेगी। पर प्रोकैरियोट के अंदर वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर एक मिलता है राइबोसोम, जिसको हम एक्सेप्शन में लिख देंगे। बट देर आर वेरियस सेल ऑर्गेनल्स जो कहां पर मिलेंगे, या फिर आप इसको यूं बोलो, सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कहां मिलेंगे? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में मिलेंगे, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं। क्लियर हुआ? यस अभी मैम। मैं डिफाइन कर देती हूँ आपको कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। आज के लिए अपना लास्ट टॉपिक वही रहेगा, प्रोकैरियोटिक एंड ओके। यूकैरियोटिक सेल। पहले इसको लिख लो। एंड ना प्लीज मेम्ब्रेन टू बाउंड योर बुक। ऑर्गेनिज्म। देखो मैंने ना बुक आज देखी है आपकी, मतलब मैं पहले भी आईसीएसई पढ़ाया हुआ है मैंने, बट स्टिल एक बार आपको रेगुलर बुक चेक करते रहना होगा। ओके, मैम तो क्लास के बाद मैं बुक रीड कर लूंगा एक बार। correct. So just what you need to go through now, you just need to go through the notes, keep the notes on one side, and the other side open your NCERT, read the NCERT, and for the reference check the notes जो समझ में नहीं आए। And still मैम। there is difficulty, मैं क्या करूंगी, I'll open the book on the board। जो मैं देखो मैं 11th 12th को पढ़ाती हूँ, मैं वहां पर भी यही करती हूँ। I'll open the NCERT and I'll start reading the points। आपको कहीं पर भी डाउट होगा, you can ask me। हाँ, you कुछ कह रहे मैम थे? बट आई डोंट हैव एनसीईआरटी। Oh, sorry, that means your publication. Okay, यस मैम। because see, for 11th and 12th, what we have the student here, na, they all belong to the CBSE, so they have the NCERT. Okay, so you have the Selena publication. Keep it like you. This is your NCERT. ICSE NCERT is known as Selena. Okay. ओके मैम। Chalo. So we are done with this. Now let's get to the difference between the prokaryotic and the eukaryotic cell. Okay, what do you understand by the term? मैम प्रोकैरियोट, एक सेकेंड मैम, बट आई थॉट प्रोकैरियोट्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। Prokaryote के बिकॉज पास well ना, defined होता है। नहीं, आई एम आस्किंग बिकॉज ना नाम No, में प्रो है ना, तो प्रो का आई गेस। मैं प्रो का मतलब बताती हूँ, अब याद रखना उसको फिर, ठीक है? हैव यू एवर हियर्ड अबाउट प्रो कबड्डी? कभी सुना है? हाँ कुछ मैम। गेम्स के अंदर ये वर्ड सुना यूज है। होते हैं, प्रो कबड्डी। हाँ सुना है? व्हाट दैट मीन, प्रो कबड्डी? वेल डिफाइंड मैम, ये कबड्डी। नहीं पता। सो यू मस्ट हाँ। नो। मैंने अभी बोला था ना कि कुछ टर्म्स अगर आसपास से याद रखोगे तो हमेशा याद रहेंगे। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट टाइम, तो प्रो कबड्डी इसलिए बोला गया था वहां पे, दैट इज द फर्स्ट थिंग विच इज लॉन्च्ड इन इंडिया। पहली बार जब लॉन्च किया गया कबड्डी को कुछ ऐसे वर्ल्ड स्केल पर, तो प्रो कबड्डी नाम दिया। अभी प्रो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट गेट टू द वर्ड प्रो। प्रो मीन्स प्रिमिटिव। व्हाट दैट मीन्स? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। फर्स्ट केम, प्रिमिटिव समझते हो ना? तो पहले बना, जो उतना वेल डेवलप नहीं बना, जो वेल डिफाइंड नहीं बना, प्रो है, फर्स्टली फॉर्म्ड है ना? आप इसको यूं भी बोल सकते हो, फर्स्ट फॉर्म्ड जो है उसके लिए क्या बोला जाता है वर्ड? प्रो वर्ड यूज किया गया है। प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव के बाद क्या है? कैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म कैरियोटिक? बोलो। मैम डोंट नो। कैरियोटिक, कैरी ऑन, दिस टर्म केम फ्रॉम कैरी ऑन, और कैरी ऑन का मतलब क्या होता है देवाशीष? दैट इज न्यूक्लियस। अब आया? इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी आपको, यहाँ ज्यादातर जो टर्मिनोलॉजी वो ग्रीक ग्रीक लैंग्वेज लैटिन से ली गई है। सो यहाँ पर ये प्रिमिटिव, अब पढ़ो वापस से। प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिनके पास है उन्हें क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोट्स बोला जाता प्रोकैरियोट्स। है। अब समझ में आया या कि नहीं आया? अब याद रहेगा? आ गया मैम। जो कंफ्यूजन यस था, मैम। जो हमेशा रहेगा अगर उसको याद नहीं करोगे तो
प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव, जो पहले प्रिमिटिव आया। फर्स्ट फॉर्म्ड। करेक्ट। तो जो स्ट्रक्चर पहले बना, जो बहुत सही से नहीं बन पाया, जो उसकी प्री फॉर्म में था, उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस को, नॉट सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस बोला जाता है या न्यूक्लियोइड बोला जाता है। समझ में आया? तो पहला यस सवाल का मैम। जवाब मिला कि प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है। अब देखो यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है एडवांस, और कैरियोटिक का मतलब फिर से न्यूक्लियस। तो जिनके पास एडवांस टाइप का न्यूक्लियस मिलेगा, मतलब एडवांस टाइप का मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, व्हाट दे विल बी हैविंग, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उन्हें क्या बोला जाएगा? यूकैरियोट्स बोला जाएगा। यूकैरियोटिक। क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट, प्रोकैरियोट्स में नॉट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन मिलती है वो इनमें एब्सेंट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है इनके पास। जबकि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है। देन इनके न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियोइड। हम्म, यहीं पे लिख मैम लेना। मेरे ठीक क्वेश्चन है। था जैसे कि हाँ। जो आपकी वो एक्सरसाइजेस होगी लाइक डीएमपी वगैरह, तो फिर आप हम्म। वो मुझे कैसे दोगे? लाइक आप वहां से पार्सल करोगे? हाँ। नो नो, अभी के लिए तो फिर मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करवा पाऊंगी। ओके, ओके मैम। तो आई मैं यहाँ प्रोवाइड से यू प्रिंट विद ले दी लूंगा। सॉफ्ट कॉपी। है ना? हाँ, आप इफ यू हैव अ प्रिंटर यू कैन यूज दैट, और इवन यू कैन जस्ट उसको गो थ्रू कर कर हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, यूं कर लेंगे। ठीक है। सो यहीं पे लिख लेना, नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस लिखा है ना, वहीं पर ही ब्रैकेट में लिख यस लेना, मैम। इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और भी न्यूक्लियोइड। टर्म्स है ना, इन इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर, वेरियस टाइप ऑफ टर्म्स आर यूटिलाइज्ड। अब एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे और लिखो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, अभी बताया था ना। यस मैम। मेम्ब्रेन बाउंड, अभी क्या होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मैं आगे पढ़ाऊंगी। एब्सेंट, यहाँ क्या होंगे? प्रेजेंट। तो सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा? राइबोसोम, जिसे प्रोटीन मशीनरी कहते हैं। पढ़ा है? यस मैम। मैम वही ना बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में हाँ, ग्रैन्यूल्स आ चिपक बट यहाँ पे जाते हैं। याद रखना है कि जो राइबोसोम यहाँ पर मिलता है वो 70S टाइप का होता है। पढ़ा है ये बात? 70S और 80S क्या होता है? नो मैम। मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। वो 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। दो टाइप के मिलते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का मिलता है। चलो आई चेंज दी पेज ना, इसे लिख लो पहले। और प्रेजेंट, यस मैम। ओके, नेक्स्ट विल गेट टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। तो वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ, जो आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि इसमें कौन आएगा, ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया। तो आप इसमें यीस्ट लिखोगे यीस्ट। नहीं नहीं नहीं, यीस्ट इज अ फंगस ना, ऑल बैक्टीरिया लिखो बस। ठीक है। मैम बट यीस्ट इसमें आता है ना बट। नहीं आता, वो प्रोकैरियोटिक नहीं है, वो यूकैरियोटिक है। ठीक है। क्या लिखा? ऑल बैक्टीरिया, तो सारे तरह के बैक्टीरिया इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। यहां बात करें एग्जाम्पल, तो बिल्कुल आप की तरह लिखवाती हूँ मैं जो आप बोल रहे हो। प्रोटिस्ट, आपने मुझे बैक्टीरिया कहीं से लिखवाया था, मैं वो वाला अभी लिखता थोड़ी था। देर पहले, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्ट और हो एक गए। सेकंड मैम, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ। हाँ, वो एक बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा सेल प्रोकैरियोटिक सेल होता है। समझे? तो प्रोटिस्ट फंगस, प्रोटिस्ट समझते हो?
प्रोटिस्ट कौन होते हैं? प्रोटेस्ट, यस मैम, जो प्रोटेस्ट करता लाइक है। अमीबा, हाँ हाँ। है ना, पैरामीशियम, ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्ट। फंगस हो गई और प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, सब इसी में आएंगे। तो यहाँ सिर्फ ओनली एंड ओनली कौन आएंगे प्रोकैरियोटिक सेल में? ये याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। इसका मेंबर कौन है? बस बैक्टीरिया। बाकी सब किस में आते हैं? यूकैरियोटिक यूकैरियोट्स। सेल के अंदर। ठीक है, यस, दैट इज ऑल। और भी कुछ है क्या आपके? है बुक में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल? मुझे तो मैम 9th में था, अभी 10th का पता नहीं मुझे। एक बार मैं देखती हूँ, मुझे कहीं दिख जाए तो। नहीं है, बट दैट इज इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ लिया। ठीक है, सो दिस वाज एक्चुअली जो मैंने आज कंप्लीट करवाया ना, दिस इज द स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास से क्या चालू करेंगे? इधर देखो, सेल हमने नेक्स्ट डिवीजन। क्लास नहीं है अभी वहां पे एनिमल सेल और प्लांट सेल दे रखा, क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया है, आप जानते हो ना उसे, बट मुझे तो पढ़ाना हाँ था। हाँ। लिंक वहीं से होगा। इधर देखो, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या चालू करेंगे? मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन टेबल किचन बनवाया था। समेटा। तो विल स्टार्ट विद द सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, ओके मैम। है ना, ये याद रहेगा? मैं पूछूंगी यस प्रोकैरियोटिक मैम। यूकैरियोटिक सेल नेक्स्ट ओके क्लास। मैम। ओके, सो वी आर हाँ डन मैम। फॉर टुडे। हेलो, मेरी बात करो। हेलो हेलो। मैम। हेलो। या, हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? Good, good. Thank you so much, ma'am. So, how's the session, ma'am? Mine was good. Easy understanding? No, Huh? yeah, so I told him ना कि अब मुझे कैसे पता लगेगा कि कितना समझ में आया कितना नहीं. He'll be able to give the answer of the question I'll provide. So for They, today, हाँ हाँ. the homework from my side will be, I'll told him ना कि थोड़ा बुक को देखना, आपका जो स्कूल बुक है, हम्म. बाकी नोट्स को चेकआउट करना. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन. तो हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन पूछने से. तो अगर क्वेश्चंस के अच्छा, रिप्लाई तो आ मैम रहे हैं नोट्स, तो मतलब ये समझ में आ रहा है. हटाना स्क्रीन. मैम जैसे नोट्स आपके कुछ होंगे, बुक हाँ हाँ, इटसेल्फ इज आई द प्रोवाइड, नोट्स. आई प्रोवाइड मैम. मैं सॉफ्ट अच्छा, कॉपी में शीट्स प्रोवाइड कर दूंगी मैम टॉपिक्स की. है ना. और हाँ, मैम एक सेकेंड ना, आप मैथ्स और कल केमिस्ट्री का भी हुआ था ना सेशन, तो उन सर से भी आप दोनों से फीडबैक लेना ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. नहीं है मैम, ना. मैंने ले लिया उनसे. हम्म. दे वर गुड, बट एक जो क्वेश्चन उठा था मैथ्स में, सर ने पढ़ाया था हाँ, तो. एक बार इसको स्पीकर हटा, मैम को बता रही कुछ. मैम एक मिनट रुकना, आप कॉल हाँ करना. हेलो. हाँ मैम, कल सर अदनान सर है जो मैथ्स ले रहे थे, तो मैंने फीडबैक पूछा था. तो क्लास में एक्टिव है स्टूडेंट, वो सब कुछ सर ने बताया, बट एक पॉइंट बोला था कि वो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे थे. ही वाज लाइक कि मेरे को सिर्फ अभी आईसीएससी ही पढ़ना है, 10th क्रैक करना है. सो कुछ था कि 11th क्लास में व्हाट सब्जेक्ट ही विल बी ऑप्टिंग, वो सवाल था, क्योंकि हम उस तरह से मैम पढ़ाते हैं. पीसीएम, पीसीएम. पीसीएम ना. हाँ, हाँ. देन ही स्टॉप्ड. सर ने थोड़ा मैथमेटिक्स के अंदर अप नॉच पढ़ाया था 11th वाला. तो ही सेड हम्म. नो कि सर मुझे इतना ही पढ़ना है अभी के लिए. अरे अपने वो आप को अरे रेस्ट्रिक्ट मत कर, है ना. थोड़ा सा आगे करेगा ना, तो इतना ही तेरा हाँ, माइंड शार्प हो जाएगा. देन ही इवन इन्फॉर्म्ड कि कुछ क्या एरोनॉटिक्स का बोला था आपने देवाशीष? आई एम नॉट हाँ श्योर यस मैम। कि आई नीड टू गो इन एरोनॉटिक्स. तो यू वांट टू बिकम एरोनॉटिकल इंजीनियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस मैम। तो फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी तो इंजीनियरिंग करनी है ना, फिर तो आईआईटी में जाना ही है. यू नो ना, एरोनॉटिक्स इज देयर इन आईआईटी मुंबई. तो फिर वो कैसे क्रैक होएगा? यस। मैम आप बताइए ना पूछकर मुझे क्योंकि मैं नहीं थोड़ा नहीं कंफ्यूज मैम, हूँ. एक्चुअली हम आपके ऊपर ही, जो भी मेरी लोकल क्लासेस भी थी ना, वो हम्म. मैंने स्टॉप कर दी है. वी तो आर मेरा फुल्ली सवाल ये फोकस है. ऑन योर क्लासेस ओनली. ओके मैम, मेरा सवाल यही था, he'll be going for IIT in 11th और नॉट, मैं ये पूछना चाह रही नहीं, हूँ. यस यस ऑफ कोर्स मैम, ही विल बी दैट ना. इज वी ऑप्टेड बंसल ना. हाँ, तो मैं वही पूछना चाह रही थी, क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं मैम, मैं भी ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, बट मैं फिर भी थोड़ा अपना कम रखूंगी बिकॉज ही विल नॉट बी ऑप्टिंग बायो. बट मैथ्स में जो हमें समीर सर ने बोला ये कि थोड़ा 11th का टच देना चालू कर देना, ताकि हाँ 11th हाँ में मैम, हमें पूरा आसानी आप हो जाए. लेना. और कहीं पे भी हाँ, आपको इश्यू आए ना, प्लीज इन्वॉल्व मी. यस यस यस, श्योर मैम, हाँ, श्योर. अभी तो ये बच्चा है, इसको कुछ मालूम नहीं आगे का, मतलब फ्यूचर का, है ना मैम.
हाँ तो मुझे भी नहीं मैम मैथमेटिक्स का पता, सर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैम उनको आगे 11th में मैथ्स नहीं लेना है क्या, हिज क्वेश्चन वाज दैट। हाँ मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं, जहां तक जैसे पता भी है। ऑफ आएगा ना, लॉन्ग वीकेंड हाँ वगैरह आएगा तो हम आपके पास कोटा ही आएंगे, हाँ श्योर मैम श्योर, बहुत अच्छा रहेगा है कि ना। जब फिजिकली हमें मिलने को मिलेगा हाँ, बच्चे। ऑफलाइन का ज्यादा वो सही रहेगा, तो हम मैं और देव वहां पे आ जाएंगे आपके पास, ठीक मैम, ओके। है सो ना। मैम थैंक आई यू बी सो मच। प्रोवाइडिंग दी नोट्स ना, मैं ग्रुप के अंदर हाँ पीडीएफ सेंड करवा दूंगी यहाँ से। ओके हाँ मैम, पीडीएफ कर दो ना, तो मैं उसका स्कैन कर लूंगी। करेक्ट। एंड देवाशीष, डू यू रिक्वायर दीज नोट्स आल्सो, जो हम यहाँ पर, या और यू आर राइटिंग दीज, Most of the things I have written on my own in my है ना? notes. मैम Okay, दिखा okay. दो। And for the other subjects also, are you are doing the same thing, if I'm not wrong? Yes, ma'am. Okay. Okay, I'm so I'll working on send it. you the content जिसमें आपको questions का भी बैंक मिल जाएगा पीछे, exercises are there. Okay, Okay? ma'am. Yeah. मैम Okay. और है ना, आप रेगुलर जैसे एक चैप्टर खत्म होएगा ना, आप टेस्ट लेते रहना, हाँ तो मैम, उससे अपन every को क्या। मैम what हाँ we मैम प्लानिंग तो हमने पूरा कर लिया है। Every हम्म, second Saturday he will be having a test. हाँ 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 Because हाँ हमने अभी चालू किया है, so this Saturday there will not be a test. From the हाँ। next Saturday he will be having a test, क्योंकि इतना अच्छा कोर्स अच्छा कंप्लीट हो मैम, आपको जाएगा। एक और चीज बतानी थी। हम्म जैसे मैम फिजिक्स के अंदर कितने चैप्टर हो गए, तूने अपने आप सेल्फ किया है ना, कितने चैप्टर्स किए तूने। मेरे थर्ड हो गए, लाइक मैम फोर्थ से 3 चैप्टर्स हो गए, तो 3 चैप्टर्स का है ना, सर जो हम्म भी ये फिजिक्स सर है ना, उनको हम्म बोलना कि ओरल एक बार पूछ लेंगी तो उनको भी मालूम पड़ हाँ, जाएगा हिज लेवल इज वेयर। फिर आप उनका चैप्टर नेम तीनों का बता टेस्ट देना। लेके विल नॉट वेस्ट मच मोर टाइम इन दैट 3 करेक्ट टॉपिक्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके है ना देवाशीष, जस्ट लेट हिम नो अबाउट दी, अभी सर का क्लास है ना, तो लेट हिम नो फ्रॉम योर साइड ओनली कि सर ये टॉपिक मैंने पढ़ ली है, सो ही नोज कि ये चैप्टर आपके प्रिपेयर्ड है। ओके ओके तो वो मैम। थोड़ा और बेसिक से मैम, भी ना करके थोड़ा अच्छे लेवल का आपको बता देंगे, हाँ क्लियर? मैम, बायो का हमने कुछ भी टच नहीं किया है, तो बायो आपके ऊपर ही है सारा, है जी ना। मैम, वो और मुझे अभी पता सेकंड लग गया। पॉइंट मैम, मैथ्स के अंदर ना थोरोली आप करवाना, बेस पूरा इसका क्लियर है हाँ ठीक, मैं है सर ना। को मैम इन्फॉर्म कर दूंगी, बस मुझे एक्चुअली मैं खुद ही बोलती, अब मैं आपसे कॉल पे बात करती जब मुझे कल ये बात पता लगी, बट अभी आपने हाँ मुझे क्लियर कर दिया, तो आई लेट नो दी सर कि हाँ नहीं, हाँ। आगे आईआईटी नहीं जाना है, तो फिर तैयारी उसी नहीं, हम लेवल की। आपके पास अभी इसकी स्कूल रीओपन होएगी ना, तो हम उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, क्योंकि स्कूल का सपोर्ट भी चाहिएगा ना ऑफ ठीक लेने मैम, के लिए, जी है मैम, ना। ओके श्योर। थैंक यू मैम, ओके मैम, बाय, टेक या बाय केयर। मैम, Bye, ma'am. बाय। बाय देवाशीष, ऑल द बेस्ट। क्लास कंप्लीट कर दी थी, उसकी मदर आ गई थी, और अदनान सर मैं पूछ दिया हूँ, मैम वो आईआईटी के लिए जाएगा, आईआईटी के लिए जाएगा। कि मैम मैंने उसको बोला कि करा सर का आगे कुछ पढ़ाने से, कि नहीं मैम वो आईआईटी के लिए जाएगा, हमारा तो ये है कि 6 मंथ्स कोर्स कंप्लीट करवा के 11th में एडमिशन, है ना।